So suppose we have f of x is equal to 3x minus 2. अभी हम सिर्फ ओ लेवल के फंक्शन पहले रिवाइज कर रहे हैं, जैसे स्टार्ट होगा ए एक्स वहां से बताऊंगा. f of x is equal to 3x minus 2. Question is find f of 2. Number 1, find f of 2. जी कैसे करना है f of 2 फाइंड मरियम? सिंपली f of x आपके पास है, उसी x में आप 2 पुट कर देंगे. So we will get f of 2 is 3 into 2 minus 2, 6 minus 2, which is 4. So the value of f of 2 is 4. Second, find f of minus 7. Hadi, what is f of minus 7? Hadi, what is f of minus 7? Quickly, Hadi. We will put minus 7 in the place of x, right, Hadi? So हम x में minus 7 put कर देंगे. So we will get the answer minus 21 minus 2 is minus 23. Okay, third part is find f of 5k. So Ayan, what we have to do here? Just put 5k in x, so you'll get 3 times 5k minus 2, so which is 15k minus 2. So this is f of 5k. Next, find f of 2x plus 1. F of 2x plus 1. Shazmina, how to find f of 2x plus 1? Oh, we'll just put the entire value 2x plus 1 x की जगह और बस solve करेंगे. Yes, we will just replace the original function में x with 2x plus 1. So we will put 2x plus 1. So we'll get 3 into x will be replaced with 2x plus 1 minus 2. So simplify करेंगे तो we will get 6x plus 3 minus 2, which is 6x plus 1. Okay, now fifth part is find x if f of x is equal to 0. Find x if f of x is 0. G. Zoya Bilal, how to do this? Find x if f of x is 0. x की जगह हम 0 लगा देंगे तो वो इक्वेशन कितना सॉल्व कर लेंगे 3x minus 2 equals to 0. जी बिल्कुल. अब हमने ये 0 जो पुट करना है ये x में नहीं पुट करना, ये कहां पुट करेंगे? f of x में हम 0 पुट करेंगे. The whole function f of x की जगह 0 आ जाएगा. So we will get 0 is equal to 3x minus 2, and from here 3x is equal to 2, mean x is 2 by 3. ठीक हो गया? f of x is equal to 5 minus 7x. We have to find number 1. X. If f of x is equal to 11. Find x if f of x is equal to 11. Yes, Zaki, you are right. 5 minus 7x. So f of x will be replaced with 11. So 5 minus 11 is equal to 7x. So x is minus 6 by 7. Second part, you have to find k. If f of k plus 1 is equal to 3. Find the value of k if f of k plus 1 is equal to 3. Still, it's a O-level function. हम O-level function ही अभी revise कर रहे हैं. जी,
जिहाद कह रहे हैं 1/7। जकी ने कहा 5 - 7 × k+1 = 3। परफेक्ट जकी जी। एफ ऑफ, जब आप ओ लेवल में लिखा होता था f(2) = 7, इसका मीनिंग क्या था? f(2) = 7, इसका मीनिंग ये था कि x में अगर 2 पुट करें तो उसका आंसर क्या होगा? 7। मीन फाइनल आंसर, द x वैल्यू इज 2 एंड y वैल्यू इज 7। इनपुट इज 2, आउटपुट इज 7। सो फंक्शन में x में आप 2 पुट करेंगे and that will be equal to 7. But here in this question, it says f of k plus 1. So इसका मतलब इस function में x will be replaced with k plus 1 and that whole will be equal to 3. So 5 minus 7, x will be replaced with k plus 1. ये देखें, हमने x को replace कर दिया k plus 1 से। अब ये complete किसके equal होगा? That will be equal to 3. So this whole, अगर x में k plus 1 पुट करें, this is equal to 3. अब यहां से आपने k फाइंड कर लेना है। जो भी एक लीनियर इक्वेशन सिंपल बन रही है इसको सॉल्व करेंगे। So 5 - 7k - 7 is equal to 3. 5 - 7 - 2 - 5 is equal to 7k. I think k आ रहा है -5/7। आ गया जी बस। What's answer? 5x - 1/2 plus 3x, यही है। 5x - 1/2 plus 3x। So जल्दी से देख लेते हैं अगर किसी को कोई इश्यू है। First step is replace g of x with y. So y is equal to 2x plus 1/5 minus 3x. Now second step is to make x subject. So यहाँ पे x subject बनाने के लिए तो multiple steps हमें करने पड़ेंगे। So पहले क्रॉस कर लें इसको। 5y minus 3xy is equal to 2x plus 1. Now shift all the terms involving x on the left, on the one side. So मैं नॉन x टर्म्स को लेफ्ट पे कर रहा हूँ एंड x टर्म्स ऑन द राइट। और वो टर्म्स जिनके अंदर x आ रहा है, टेक x कॉमन, 2 + 3y, so 5y - 1. So x is 5y - 1/2 plus 3y. So third and last step is to write the final answer. Once you have made x subject, 5y - 1/2 plus 3y में जहां y आ रहा है, replace this with x. So you will get 5x - 1/2 plus 3x. So that is f inverse x. ये अगर इसका एक पार्ट हो, अगर क्वेश्चन हो सेकंड पार्ट, to find, ये g inverse है, not f inverse. To find g inverse of 2. So what is g inverse of 2? So हम 2 से रिप्लेस कर देंगे। 5 times 2 minus 1, 2 plus 3 into 2, which is 9/8. So g inverse of 2 is 9/8. फाइंड करना है f inverse x. आप ये जो डोमेन साथ गिवन है x greater than equal to 4, आप इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। आपके पास सिंपल क्वेश्चन है f of x is equal to x square minus 8x plus 3. आप इनवर्स फाइंड किए, वही टेक्निक्स लगाने की कोशिश कीजिए जो कि आप ओ लेवल में लगाते थे। मीन मेक f of x को रिप्लेस f of x with y, make x subject and then write the inverse. करेक्ट। सो सबसे पहले आपने आई होप यही किया होगा कि f of x को रिप्लेस कर दिया होगा विद y। जो लोग अभी ओ लेवल के बाद फौरन से अब ईएस में आए हैं, उनमें से कोई बताएगा कि कैसे यहाँ पे आप सेकंड स्टेप करें, कैसे यहाँ x को सब्जेक्ट बनाएं? जरमीना, शजमीना, अली बताएंगे x को सब्जेक्ट कैसे बनाया जाए यहाँ पे? अहमद फारूक सर तौबा हम कर बात रहे हैं। करेंगे मिडिल टर्म ब्रेक से।
अहमद, हमने इक्वेशन को क्यों सॉल्व करना है? जब हमने एक्स को सब्जेक्ट बनाना है तो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम। यस जकी, यू आर राइट। और जमीना, आपने कहा कि मिड टर्म ब्रेक, शायद आपने कहा फैक्टराइजेशन। इसकी फैक्टराइजेशन वैसे पॉसिबल नहीं है, लेकिन चले अगर फैक्टराइज हो भी जाए, सपोज इसके फैक्टर्स बन जाते हैं एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 3, क्या करेंगे फिर आगे? एक्स कैसे सब्जेक्ट बनेगा? आपको तो एक्स सब्जेक्ट बनाना है। एंड यस, अब आप देखिए हादी, रामेश, अहमद, सब अगर आप देखिए तो यहाँ पे प्रॉब्लम है एक्स को सब्जेक्ट बनाने का। सो एक्सपीरियंस लोग बताएंगे एक्स सब्जेक्ट कैसे बनाना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर करना पड़ेगा। आप इस क्वेश्चन में से एक्स को सब्जेक्ट नहीं बना सकते। आप देखिए डायरेक्टली आपसे एक्स सब्जेक्ट नहीं बन रहा, अगर आप एक्स कॉमन ले लें फिर भी नहीं बनेगा। तो जैसे भी कर लें, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कंप्लीट द स्क्वायर। तो स्क्वायर कंप्लीट करना है, स्क्वायर कंप्लीट करेंगे तो आप देखिएगा एक्स सब्जेक्ट बन जाएगा। और स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए आपका क्वाड्रेटिक्स टॉपिक अच्छा होना चाहिए। उस क्वाड्रेटिक्स टॉपिक में आपने स्क्वायर कंप्लीट करना सीखा था। सो मैं भी डायरेक्ट कर रहा हूँ स्क्वायर कंप्लीट करना। जी, कौन बताएगा? पहले हम पूछते हैं किसी से। जी, अहमद फारूक, बताइए इसका स्क्वायर कैसे कंप्लीट करूं? यस जकी। स्क्वायर एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और दोनों साइड में ब्रैकेट्स लगाएंगे और फिर प्लस 3। -4 स्क्वायर बाय प्लस नहीं। जी सर, -4। ओके, वैसे तो आप सबने किया हुआ है लेकिन शायद भूल गया है। देखिएगा अगर यहाँ पे लिखा हो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, सो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए स्क्वायर के अंदर जो नंबर होगा यहाँ पे वो आ जाएगा, मीन x हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x। व्हाट इज द हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x? 8 का हाफ इज 4, सो इट इज x माइनस 4 स्क्वायर। इसी नंबर का स्क्वायर बाहर सब्ट्रैक्ट होगा। इनसाइड माइनस है या प्लस है, बाहर हमेशा माइनस करना है 4 स्क्वायर। एंड एट द एंड दिस 3 विल बी रिटन एज इट इज, सी। सो आई होप यू रिमेंबर, यही करते थे ना क्वाड्रेटिक्स में। तो आपका स्क्वायर इट इज x माइनस 4 होल स्क्वायर -16। ये -16 है या +16 है? ये -16, ये स्क्वायर माइनस के ऊपर नहीं है, दिस इज ओनली फॉर 4। सो -16 + 3 इज -13। सो देखिए साथ स्क्वायर कंप्लीट हो गया। जब आपका स्क्वायर कंप्लीट हो गया, अब आप देखें यू कैन इजीली मेक एक्स सब्जेक्ट। नाउ वी कैन मेक एक्स सब्जेक्ट। तो एक्स को आइसोलेट कीजिए। सो शिफ्ट 13 ऑन द अदर साइड, y + 13, x - 4 होल स्क्वायर, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। सो वी विल गेट, ताकि स्क्वायर कैंसिल हो, तो वी विल गेट प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y + 13। खोल के दोबारा क्वेश्चन बन जाएगा, इतनी मेहनत क्यों की हमने, स्क्वायर क्यों कंप्लीट किया था, वो दोबारा क्वेश्चन आ जाएगा। ओके, -4 को उधर शिफ्ट कीजिए तो वी विल गेट x इज इक्वल टू -4 ऑन द अदर साइड विल बिकम +4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y + 13। सो अब हम लिखने लगे हैं, x को सब्जेक्ट बना दिया, अब हम लिखने लगे हैं फाइनल आंसर मीन इनवर्स। सो f इनवर्स x इज इक्वल टू y को हम चेंज कर देंगे किससे? x से। सो 4 प्लस स्क्वायर रूट x + 13। जी, आई होप आप में से काफी लोगों ने ये ऑब्जर्व किया है कि मैंने प्लस माइनस नहीं लिखा, मैंने सिर्फ प्लस लिखा है। एक ये बात, मैंने प्लस माइनस नहीं लिखा, सिर्फ प्लस लिखा है। सो ये इंटेंशनली मैंने प्लस माइनस दोनों रिमूव करके सिर्फ पॉजिटिव लिखा है। उसकी रीजन हमारे अभी नहीं, मैं आपको बताऊंगा, वो फंक्शन का टॉपिक तकरीबन जब एंड हो रहा होगा, 1-to-1 फंक्शन हम पढ़ेंगे तो उस वक्त बताऊंगा। लेकिन अभी आपने माइंड में रखना है, सिर्फ इतना ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम इनवर्स लिखेंगे तो प्लस माइनस दोनों नहीं लिखना, सिर्फ या तो पॉजिटिव लिखना है या नेगेटिव लिखना है। लेकिन क्योंकि अभी तक आपको रीजन नहीं पता उसकी, तो अभी फिर मैं ये भी आगे रीजन नहीं बताऊंगा कि प्लस क्यों लिखेंगे और माइनस क्यों लिखेंगे। अभी अगर देखें तो पॉजिटिव में वैसे अगर आपको बता दूं, तो अगर आपकी डोमेन ये नंबर हुआ x इज ग्रेटर देन अ सर्टेन नंबर, x इज ग्रेटर देन हुआ तो मैं पॉजिटिव लिखा करूंगा। अगर x इज लेस देन 0, लेस देन 4, लेस देन -2, लेस देन -7 हुआ तो मैं लिखा करूंगा 4 माइनस अंडर रूट x + 13। सो मैं एंड बताता हूँ, इसकी रीजन अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, जब हम 1-to-1 फंक्शन पढ़ेंगे तो उस वक्त इसकी रीजन पता चलेगी। क्या बता रहा हूँ, लिहाज अनइम्पोर्टेंट चीजें नहीं चल रही, रिपीट नहीं करनी जो कुछ मैं जून ने किया है।
आपके पास प्लस माइनस दोनों नहीं लिखने, दोनों लिखने का मतलब कि आंसर मार्क लूज करेंगे। इनमें से कोई एक लिखना है, वो क्यों नहीं लिखना है उसके रीजन भी बाद में डिस्कस करेंगे। और इनमें से एक कौन सा लिखना है अभी फिलहाल रट्टा में लगवा रहा हूं, मैं इसकी रीजन भी बताऊंगा पहले जब 1 to 1 फंक्शन करेंगे। कि अगर हो ये ओरिजिनल क्वेश्चन में एक नंबर डोमेन ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 8, ग्रेटर देन -2, तो आप पॉजिटिव लिखेंगे। अगर हुई लेस देन 0, लेस देन 4, लेस देन -2, तो फिर आप नेगेटिव लिखेंगे। बट इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे। 4 जी जल्दी से एफ ऑफ एक्स को y लिखिए। स्क्वायर कंप्लीट करने में आप एक्सपर्ट हो चुके हैं। स्क्वायर कंप्लीट कीजिए, फिर इनवर्स आ जाएगा। काफी लोग क्लास को बहुत लेट ज्वाइन करते हैं, सो प्लीज जकी, साद और कुछ और लोग भी क्लास प्लीज टाइम पे ज्वाइन किया करें। मैक्सिमम लेट 5:20। And now you have to, if you want to complete the square, I hope you remember that we need to take 2 common. If you take 2 common, then we are left with x square minus 9x plus 5/2. मैं कोशिश करें कि फ्रैक्शंस में क्वेश्चन को करें। वालेकुम अस्सलाम। वही टॉपिक, हाँ जी, नया टॉपिक है, एएस का नया टॉपिक। डेसिमल में कर रहे हैं आप लोग या फ्रैक्शन लिखते हैं? डेसिमल्स, चलिए मैं भी डेसिमल निकाल लूं। इनसाइड स्क्वायर कंप्लीट करें तो दैट विल बिकम x minus 4.5 स्क्वायर, आउटसाइड 4.5 स्क्वायर प्लस 2.5। नफीद -4.5 स्क्वायर प्लस 2.5 आंसर क्या आता है कैलकुलेटर? इट्स माइनस 17.75। अब आप 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो y इज इक्वल टू 2 into x minus 4.5 square. What is 17.75 times 2? 17 times 2, 34, 35.5। ओके, हमने स्क्वायर तो कंप्लीट कर लिया है। अब आप यहां से x को आइसोलेट करें, मीन x को सब्जेक्ट बनाएं। सो y plus 35.5 over 2 is equal to x minus 4.5 whole square. Take square root on both sides. So we will get plus minus square root y plus 35.5 over 2 is equal to x minus 4.5. And then we have x is equal to shift minus 4.5 on the other side. So it's positive 4.5 plus minus square root y plus 35.5 over 2. And finally, the f inverse x is Mr. Jihad. What is f inverse x? So we got f inverse x is equal to 4.5 minus square root x plus 35.5 over 2. हमने प्लस माइनस नहीं लिखना, इसकी रीजन अभी डिस्कस हमने नहीं की। माइनस लिखना है, उसको भी मैंने सिर्फ मेथड बता दिया है कि डोमेन आपके नंबर से लेस होगी तो आप माइनस लिखेंगे, तो आपने माइनस लिख दिया।